الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. محترم حضرات، آئیے ہمارا سب سے پہلے ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور نبی رحمت نوبہار شفاعت کے دولہا، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار جناب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پڑھے بآواز بن اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ حضرات کافی دیر سے نعت و منقبت سماعت کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں. تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بلا کسی تمہید کے سیدھا موضوع پر آتا ہوں. تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست اس دن دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں. اس آیت میں قیامت کے بعض احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ دوستی جو دنیا میں کفر اور معصیت کے بنا پر تھی، کل قیامت کے دن وہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. جبکہ دینی دوستی اور وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی وہ دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی بلکہ وہ باقی رہے گی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو دوست مومن ہیں اور دو دوست کافر. کہتے ہیں کہ جب مومن دوستوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے مولا، کہ وہ میرا دنیا میں جو دوست تھا وہ مجھے تیرا اور تیرے رسول کی فرمانبرداری کا حکم دیتا تھا، مجھے نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا، اور یہ کہتا تھا اے میرے دوست، ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور ہمیں وہاں جواب دینا ہے. آج دنیا میں جتنے نوجوان لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اگر کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی کے قریب جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ کیسا ہے. آج لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے ہر ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، جب آپ برائی کے قریب جائیں گے تو جب برائی آپ پر غالب ہو جائے گی تو کچھ دنوں کے بعد وہ برائی اچھی معلوم ہونے لگے گی اور نیکیوں سے دل اچاٹ ہو جائے گا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں جب نیکی کی بات آتی ہے، عبادت کی بات آتی ہے تو لوگ اس سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ برائی ہمارے دلوں پر اس طرح غالب ہو گئی ہے کہ وہ ہمیں اچھی معلوم ہونے لگی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری صحبت اور سنگت برے لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے. یہ نوجوان لوگوں کا حال تو یہی ہے
जो बेचारे बूढ़े हो गए हैं, जवान है, उनका भी यही हाल है, दीन से दूर हैं। आज कौम का जायजा लीजिए तो हर कोई दीन से दूर होता नजर आ रहा है। इसकी वजह यही है कि हम इल्मे दीन से दूर हैं। आज हम दुनिया के लिए न जाने क्या से क्या करते हैं, लेकिन दीन से दूर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि हदीस पाक में है कि इल्मे दीन का तलब करना, हासिल करना तमाम मुसलमान मर्दों औरत पर फर्ज है, और यही इल्म का हमें जवाब देना है। आप दुनिया में हैं, दुनियावी इल्म भी हासिल करिए, लेकिन साथ साथ दीनी इल्म हासिल करिए, क्योंकि दीन ही अदब सिखाता है, हया सिखाता है। दुनिया की तालीम में ये चीजें नहीं बताई जाती। आज लोग दुनिया की तालीम हासिल करते हैं, लेकिन अदब नहीं, हया नहीं। इल्म तो हासिल कर लिए, अदब हया कहां से आएगा? वहीं से आएगा जब आप दीन सीखेंगे और अच्छे लोगों की सोहबत व संगत अख्तियार करेंगे। आज हमारी कौम बेअदबी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह यही है कि हम दीन से दूर होते नजर आ रहे हैं, और जब तक बेअदबी होगी, बेहयाइयां होंगी, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। आज हम जबान से कुछ भी कह लें कि हम ईमान वाले हैं, सबसे बड़े मुसलमान हम हैं, सबसे बड़े मोमिन हम हैं, यह आपकी जबान है, जो चाहे वो बोले। सही सही देखा जाए तो आज हम सिर्फ आधार कार्ड के मुसलमान रह गए। मुसलमानों के अंदर जो चीज होना चाहिए वो चीज हमारे अंदर पाई नहीं जा रही। वो ठीक है, अपने आप को हम कहें हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन मुसलमान का अमल क्या है, उनका किरदार क्या है, आज वो हमारे अंदर पाया नहीं जा रहा है। आज हमारा अखलाक मुर्दा हो गया है, हमारा किरदार मुर्दा हो गया है, हमारा जिंदगी गुजारने का जो तरीका है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम गुमराहियत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब गुमराही की तरफ बढ़ेंगे तो बेअदबी होगी, तो वालिदैन की नाफरमानी होगी, बड़े छोटे का अदब खत्म हो जाएगा। आज हमारी कौम से ये चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं देखता हूँ कि लोग अगर किसी आलिम के पास जाते हैं तो लोग उनसे भी बेअदबी से बात करते हैं, अदब नहीं। और जब तक अदब नहीं होगा तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। और ये अदब कहाँ से पाया जाएगा? आज लोग उम्र देखते हैं, ये हमारे सामने पैदा हुआ है, हालांकि इल्म के लिए उम्र नहीं देखी जाती। सहाबाए कराम से अदब सीखिए। सहाबाए कराम का अदब क्या था? एक दिन मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदना सरकार सिद्दीक़ अकबर से फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक, बड़े तुम हो कि मैं हूं? तो सैयदना सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदब देखिए। अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, बड़े तो आप ही हैं, मैं पैदा पहले हो गया। ये सहाबाए कराम का अदब था। यानी बड़े होने का जुमला ये हुजूर की तरफ मंसूब करते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, बड़े तो आप ही हैं, मैं पैदा पहले हो गया। ये सहाबाए कराम का अदब था। तो सहाबाए कराम जो ईमान में सबसे आला हुए, अमल में सबसे बढ़कर हुए, वजह क्या थी कि वो हुजूर का अदब किया करते थे। और जो बंदा जिसके अंदर अदब होता है वो बंदा धीरे धीरे तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यही बयान फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह की बारगाह में वो कहेगा, ऐ मेरे मौला, दुनिया में जो मेरा दोस्त था वो मुझे तेरा और तेरे रसूल की फरमाबरदारी का हुक्म देता था, बुराई से रोकता था, बदी से रोकता था, नेकी का हुक्म देता था। और जब वो बंदा रब की बारगाह में इतना अर्ज करता है, फिर जब कुछ दिनों के बाद उसका वो भी दोस्त इंतकाल कर जाता है, रब दोनों को जमा फरमाता है
اور रब फरमाता है कि तुम में से हर एक दूसरे की तारीफ करे तो गोया कि हर एक दूसरे को कहता है ये अच्छा भाई है, अच्छा दोस्त है, अच्छा रफीक है। इसी तरह जब काफिर दोस्तों में से कोई एक मर जाता है तो बारगाह इलाही में अर्ज करता है, मौला वो दुनिया में जो मेरा दोस्त था वो तेरा और तेरे रसूल की नाफरमानी का हुक्म देता था, मुझे बुराई का हुक्म देता था, नेकी से रोकता था, मुझे शराब के अड्डों पर लेकर जाया करता था, मुझे जुए के अड्डों पर लेकर जाया करता था। यानी मेरे अंदर जितनी बुराई पाई गई ये मेरा दोस्त था, मुझे सब कुछ सिखाया। तो जब उसका वो दोस्त जो दुनिया में रहता है वो भी मर जाता है, रब दोनों को जमा फरमाता है और रब फरमाता है कि तुम में से हर एक दूसरे की बुराई करे तो गोया कि हर एक दूसरे को कहता है ये बुरा भाई है, बुरा दोस्त है, बुरा रफीक है। हज़रात गिरामी वकार, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, आयत का तर्जमा और हज़रत अली मुर्तज़ा की तफसीर से यही पता चलता है कि हमें और आपको दुनिया में ये चाहिए कि नेक और परहेजगारों से मोहब्बत करें, उनसे लगाव रखें। जब हम उनके पास रहेंगे, उनसे लगाव रखेंगे, उनसे मोहब्बत रखेंगे तो हमारा दिल बिल्कुल नरम नजर आएगा, वरना दिल सख्त हो जाएगा और बुराई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो औलियाए कराम की मोहब्बत, अंबियाए कराम की मोहब्बत, नेक बंदों की मोहब्बत, अल्लाह के नेक वलियों की मोहब्बत कल कयामत के दिन यही काम आने वाली है। क्योंकि सहाबाए कराम, एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? तो मेरे आका फरमाते हैं तो उसके लिए कौन सी तैयारी किया है? तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरे पास और कोई तैयारी नहीं, हाँ इतनी बात जरूर है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे आका फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है कल कयामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं इस्लाम लाने के बाद सहाबाए किराम को आकाए करीम के किसी बात से इतनी खुशी नहीं हुई कि जितनी की इस बात से खुशी हुई कि यानी अगर तुम दुनिया में रसूल से मोहब्बत करते हो तो कल कयामत के दिन रसूल के साथ उठाए जाओगे। हज़रात गिरामी वकार, तो अल्लाह वालों की मोहब्बत और हुजूर की मोहब्बत कल कयामत के दिन यही काम आने वाली है। तो मोहब्बत कैसे बढ़ेगा? जब हम नेक लोगों की सोहबत और संगत अख्तियार करें। हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, लेकिन जब नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करेंगे तो हमें और आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन मैं देखता हूँ आज लोग नेक लोगों से दूर महफिले पाठ में बैठते हैं तो सवाब की नियत से बैठते हैं, उल्टा लेकिन गुनाह लेकर जाते हैं। जैसे लोग हज पे जाते हैं सवाब की नियत से, लेकिन अगर गुनाह उनसे सरजद हुआ तो जिस तरह सवाब ज्यादा मिलेगा इसी तरह से गुनाह भी ज्यादा हो। महफिल पाक में बैठे हैं पीछे लोग और हंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात ही करना है तो घर चले जाइए, महफिल में मत बैठिए। अगर आप आए हैं तो सवाब की नियत के लिए आए हैं, बैठने की जरूरत नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनाई जाती है ताकि बंदा कुछ सुने और उस पर अमल करे। अल्लाह हमारी इबादतों का मोहताज नहीं, हम उसके मोहताज हैं। अभी एक बीमारी आती है, आज लोगों के पास पैसे की फरावानी है, मालो दौलत है, लेकिन मैं यही देखा हूँ कई ऐसे लोग हैं जो भिखारी नजर आ रहे हैं। पैसा है लेकिन 2 साल के बाद रोड पे खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन जब पैसे का गुरूर होता है, नौजवानी का नशा चढ़ता है तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, दीन को मजाक बनाकर रखते हैं। आज देख रहा हूँ लोगों का हाल। इसकी वजह यही, आज जो हम कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, तो वजह यही है, ये हमारी कमियां हैं। वरना पहले के जमाने में हम नाम के चंद मुसलमान थे,
लेकिन पूरी कौम पर इस तरह गालिब थे, जब ईसाई की औरतें, जब उनके बच्चे रोने लगते थे ईसाई के, तो उनकी औरतें ये कहती थी, ऐ मेरे बच्चे चुप हो जाओ, देखो मुसलमान आ रहे हैं। यानी मुसलमानों का इतना रोबो दबदबा था कि जब बच्चे सुनते थे कि मुसलमान आ रहे हैं तो उनके बच्चे चुप हो जाते थे। लेकिन आज हम तादाद में बहुत हैं, आज अगर सर्वे किया जाए तो हमारी तादाद बहुत है, लेकिन आज हम बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह यही है कि जब हम अपनी कौम के साथ, अपनी इबादतों के साथ, अपने मजहब के साथ, अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा कर रहे हैं। आज हम मुसलमान हैं, लेकिन खुद मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन मुसलमान के नाम पर अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। इबादत के नाम पे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हम परेशान नजर आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमारे घरों में आएंगे और हमें काट कर चले जाएंगे, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और ऐसा हो रहा है। आज दूसरे मुल्कों का जायजा लीजिए, मुसलमानों का क्या हाल रहे हैं। मुसलमान रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, सिस्कियां ले रहे हैं, लेकिन कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। वजह यही है। तो हम कहेंगे अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुन रहा है, रसूल हमारी दुआएं नहीं सुन रहे हैं, औलियाए कराम हमारी दुआएं नहीं सुन रहे हैं। वो कैसे सुने जब हमारे अंदर ईमान ही नहीं है, इबादत नाम की चीज नहीं है, तो हमारे अल्लाह हमारी दुआओं को कैसे सुनेगा। आज नौजवानी का नशा है, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं, न जाने क्या से क्या कर रहे हैं, और ये दिल में होता भी है कि हम शराब पी रहे हैं। आज अपनी कौम का जायजा लीजिए, मुसलमानों का, अपने इलाके का, कितने नौजवान ऐसे हैं जो शराब पी रहे हैं। हम तक बात पहुंचती, हमें भी पता चलता है, नौजवान हैं शराब पी रहे हैं, शराब नोशी में मुब्तला हैं, और शराब नोशी करने वाला, हराम में मुब्तला रहने वाला, वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। और मौत का कोई ठिकाना नहीं। आप बाइक से जा रहे हैं, एक्सीडेंट होगा, वहीं मर जाएंगे और फिर जहन्नम का ठिकाना बन जाएगा, जहन्नम की ईंधन बन जाएंगे। कम से कम कुछ अल्लाह का खौफ करिए। मस्जिद में रहिए तो वहाँ शोर मत करिए। अब ईद के दिन नमाज हो रही थी मस्जिद में, कितना लोग शोर कर रहे थे। अरे बात करना है तो कुछ देर बात करिए, जो जरूरत की बात है। अब लोग शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ जोर से नहीं बोलना। सहाबाए किराम अल्लाह की बात तो दूर की है, हुजूर की बारगाह में जब हाजिर होते थे तो बुलंद आवाज से बात नहीं करते हुजूर की बारगाह में। और जब अल्लाह का घर है वहाँ शोर कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और अदब नहीं है कि भाई मौलाना साहब आ गए हैं, हमसे बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, हमें खामोश रहना चाहिए। अदब खत्म हो चाहिए। जितने नौजवान हैं इनको खुद सोचना चाहिए, एक दिन हम बूढ़े होंगे, हमारा बेटा भी होगा तो वो भी हमें बेइज्जती करता हुआ नजर आएगा। आज अगर हम ऐसा करेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि हमारे सामने भी आएगा। हम जैसा करेंगे वैसा सामने आएगा। लेकिन लोग ये सोचते नहीं, ये नहीं सोचते कि मरना है। अगर कोई सोचता भी है तो ये कहता है कि मरने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। आज अगर हल्की सी तकलीफ हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त हम नहीं कर पाते। और जब जहन्नम में जलेंगे सदियों तक, अगर ईमान हल्का भी रहेगा हम अजाब भुगतेंगे और फिर अल्लाह हमें जन्नत अता करेगा। लेकिन जब ईमान ही नहीं रहेगा तो सारी जिंदगी हम जहन्नम में रहेंगे। और जहन्नम का अजाब इतना सख्त है कि अगर लोग उसे सोच लें तो आंखों से आंसुओं की बरसात जारी हो जाएगी। तो हज़रात गिरामी वकार, अदब सीखिए, हया सीखिए, इसी से सब कुछ मिलेगा। तो वरना ये ख्वाहिशात, ये लज्जतें चंद लम्हों के लिए हैं। एक दिन सबको इस चीज से जब आप आंख खुलेगी तो वक्त गुजर जाएगा। और आंख कब खुलती है? जब आपका बेटा जवान हो जाता है या आप बूढ़े हो जाते हैं, और जब बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे या पैसे की कमी होगी और दुनिया की तमाम खुराफात में, तमाम
बलैयात में जब आप मुब्तला हो जाएंगे तब आपको अल्लाह नजर आएगा, अपने गुनाह नजर आएंगे। हज़रात गिरामी वकार, अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार करिए। जब बंदा अल्लाह वालों की सोहबत व संगत अख्तियार करता है, अदब सीखता है, हया सीखता है, तब ईमान मुकम्मल होता है। क्योंकि ईमान का मेरे आकाए करीम 70 दर्जा बयान फरमाते हैं। कहते हैं ईमान का सबसे आला दर्जा ये है कि इस चीज का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ईमान का सबसे कम दर्जा ये है कि रास्ते से तकलीफ दे वाली चीज को हटा देना, और शर्मो हया भी ईमान की शाख है। यानी ईमान का जो सबसे कम दर्जा है वो आज हमारे अंदर नहीं पाया जा रहा है। शर्म और हया औरतों के अंदर तो है नहीं, आदमी भी बेहया हो गए हैं, बेशर्म हो गए हैं। औरतों के अंदर जो हया नाम की चीज है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज कौम का जायजा लीजिए, शादियों में जाइए तो सरों पे दुपट्टा नहीं, 2000 का कपड़ा पहनी है, 5000 का, तो उनका ये मिजाज है कि 500 का नकाब पहनेंगे और अंदर हमारे 5000 का कपड़ा है। तो नकाब नहीं पहनते ताकि कपड़े को लोग देखें और उसकी तारीफ करें। लोगों को दिखाना ही गुनाह है। अगर आप अपने शौहर के लिए करें तो वो चीज दुरुस्त है, जायज है, लेकिन लोग आज अपनों के लिए नहीं गैरों के लिए करते हैं। आज दिखावा हमारी कौम में ये बहुत ज्यादा हो गई है, और दिखावे के लिए चाहे हम महफिल पाक करें, चाहे इबादत करें, चाहे दुनिया की तमाम नेकियां करें, अगर उसमें दिखावा है कि हमारी इसमें शोहरत हो, हमारा नाम हो, तो ठीक है, आपको दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ ये सोचिए कि मरने के बाद हमें कुछ यहाँ से लेकर जाना है और अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और जवाब देना है, तब जाके हमारी नजात होगी। हज़रात गिरामी वकार, कुरान मजीद का यही कायदा है कि उस दिन गहरे दोस्त, किस दिन? कयामत के दिन। ये दुनिया में जो हम दोस्ती यारी करते हैं, इसी में जिंदगी गुजार देते हैं। अगर अच्छे दोस्त हैं तो कयामत के दिन काम आएंगे, और बुरे दोस्त हैं तो कयामत के दिन ये काम नहीं आएंगे। अल्लाह फरमाता इल्लल मुत्तकीन, कयामत के दिन कौन काम आएगा? परहेजगार लोग काम आएंगे, मुत्तकीन काम आएंगे, अल्लाह के नेक बंदे काम आएंगे। हज़रात गिरामी वकार, वक्त काफी हो चुका है, मैं अपनी तकरीर को यहीं पे खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनात वल मुस्लिमात, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।